Assalamualaikum. Topic under the discussion is the nutrition and the digestive system of the amphibians. Adults amphibians are carnivores. This is important from examination point of view. They feed on a variety of invertebrates. The diet of some anurons, however, are more diverse. For example, bullfrog will prey on small mammals. Its main bullfrog is a huge animal, so that it can prey on small mammals and other anurons. The main factor that determine what amphibian will eat are the prey size and the availability. Their food depends on the prey size. If the size is small or suitable for their that they grasp, and the availability of the food, they will eat the material. Most larvae are herbivorous and feed on the algae and other plant matter. So why the adults are the carnivores and why larvae are herbivorous? Actually, it reduces the competition between the larvae and the adults of the same species. Most amphibians locate their prey by the sight, so they have well developed eyes and simply wait for the prey to pass by, और ये simply wait करते हैं कि इनका prey इनके पास से गुजरे. Olfaction play an important role in the prey detection by the aquatic salamanders and the caecilians. Olfaction सूंघने की जो aquatic salamanders और caecilians हैं उनके अंदर प्रे डिटेक्शन जो होती है वो ऑल्फेक्शन के थ्रू होती है, क्योंकि पानी के अंदर बाज़ पानी मरकी भी तो हो सकता है, गदला भी तो हो सकता है. वहाँ पे फिर साइट काम नहीं करेगी, यानी विजन या नज़र काम नहीं करेगी, तो फिर वहाँ ऑल्फेक्शन या नोज़ काम करेगी. Many salamanders are relatively unspecialized in their feeding methods, using only their jaws to capture prey. Anurans and plethodontid salamanders, however, use their tongues and jaws to capture prey. The prey capture mechanism differs somewhat in two groups. A true tongue is first seen in the amphibians. The tongue of the fish is simply a fleshy fold on the floor of the mouth. और जो एक ट्रू टंग है, ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वो आपको फिश ये एम्फीबियंस में पहले मिली थी. अब ये आप एम्फीबियंस का देख लें, फ्रॉग की ईटिंग हैबिट देख लें. इसमें ये कोई भी इंसेक्ट है. अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जो फ्रॉग की टंग होती है ना, बाकी सारे एनिमल्स की टंग पीछे से जुड़ी हुई होती है. फ्रॉग की जो टंग होती है ना, वो आगे से जुड़ी हुई होती है. अब देखें, आगे से अगर ये पीछे से जुड़ी हुई होती है तो थोड़ी सी टंग बाहर निकल सकती थी. अब जब इसकी स्टिकी टंग होती है ना, अब जब ये पीछे से निकलती है तो काफ़ी लेंथ तक दूर से जाके भी कीड़े को पकड़ लेती होती है. Flip and grab feeding in the toad. The tongue attached at the anterior margin of the toad jaw and flip out to capture a prey item on its sticky secretions. Fish food is swallowed whole and not manipulated by the tongue. Fish अपने खाने को पूरा ऐसे ही निगल लेती है. swallow का मतलब होता है निगल लेना, और manipulate नहीं करेगी उसकी टंग उसकी फूड को. The anuron tongue attaches at the anterior margin of the jaw and fold back over the fold of the mouth, floor of the mouth. Mucus and buccal glands on the tip of the tongue exudes sticky secretions. अब ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि टिप ऑफ टंग पे कौन से ग्लैंड्स हैं, म्यूकस और बकल ग्लैंड्स हैं, और उनकी जो सिक्रीशंस निकलती हैं वो हेल्प करती हैं प्रे कैप्चरिंग को. व्हेन द प्रे कम्स विद इन द रेंज एंड न्यूरॉन्स लंग्स फॉरवर्ड एंड फ्लिक आउट इट्स टंग. ये न्यूरा फ़ौरन अपनी टंग फ्लिक आउट करेगा. द टंग टर्न्स ओवर एंड द लोअर जॉ इज डिप्रेस्ड. The head tilt on its single cervical vertebrae, which help aim the strike. The tip of the tongue entraps the prey, and the tongue and the prey are flicked back inside the mouth. अब जैसे ही प्रे टंग के ऊपर चिपकेगा, ये ट्रैप हो जाता है, तो वो दोबारा बैकवर्ड मूव करेगी माउथ के अंदर, और ये तकरीबन इसमें टाइम कितना लगता है, 0.05 से 0.15 सेकंड्स. मतलब बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस होता है. The anurons hold the prey by pressing it against the teeth on the roof of the mouth. Anurons hold कैसे करेंगे prey को, उसे प्रेस करते हैं against the teeth जो उनके माउथ की रूफ पे मौजूद होते हैं. And the tongue and the other muscles of the mouth push food toward the esophagus. और टंग और जो दूसरे माउथ मसल्स हैं वो फूड को पीछे की तरफ एसोफेगस की तरफ धकेलते हैं.
The eyes sink downward during swallowing and help force food toward the esophagus. और आइज़ भी इनकी डाउनवर्ड सिंक करती हैं स्वेलविंग के दौरान फूड को. और प्लेथोडोंटिड salamanders tongues are protruded using muscles associated with the hyoid bone that lie in the floor of the mouth. प्लेथोडोंटिड salamanders की जो टंग हैं वो बाहर जब प्रोट्यूड करते हैं, निकालते हैं, तो उसके साथ मसल्स एसोसिएटेड होते हैं जो हायोइड बोन ये फ्लोर ऑफ माउथ पे मौजूद है. Tooth structure of amphibian is unique. The jaws of the ancient tetrapods like Ichthyostega were lined by sharp conical teeth that were set in the shallow socket acrodont. अब एनिशियंट जो टेट्रापोड्स थे उनकी जो कॉनिकल टीथ हैं शार्प, वो शेलो सॉकेट्स में, जो सॉकेट्स जबड़े के अंदर सॉकेट्स मौजूद होते हैं, और इस टाइप की डेंटिशन को एक्रोडोंट डेंटिशन कहा जाता है. मॉडर्न एम्फीबियंस हैव पेडिसिलेट टीथ इन विच द डेंटाइन ऑफ द अपर टूथ क्राउन एंड द टूथ बेस इज कैल्सिफाइड एंड हार्डन. जो पेडिसिलेट टीथ हैं उनमें जो डेंटाइन है अपर जो जबड़े से बाहर टीथ का पोर्शन होता है ना, उसे क्राउन कहते हैं. उसका जो डेंटाइन पोर्शन है वो कैल्शियम की वजह से हार्ड हो गया. द डेंटाइन बिटवीन द क्राउन एंड द बेस इज अनकैल्सिफाइड विच मेक द टूथ समवट फ्लेक्सिबल. इट कैन बेंड इनवर्ड बट नॉट आउटवर्ड. एज द प्रे स्ट्रगल द इनवर्ड बेंडिंग ऑफ टीथ टेंड्स टू ड्रॉप prey further into the mouth cavity. Teeth are used for holding prey, not chewing. अब डेंटाइन और जो टीथ की बेस है ना, उसके दरमियान कैल्सिफिकेशन कम है, क्योंकि कैल्शियम अगर डिपॉजिट हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे टीथ वो हार्ड हो जाएगा. अब जब प्रे को पकड़ा हुआ होता है इन्होंने, तो प्रे स्ट्रगल कर रहा होता है. प्रे को स्ट्रगल से प्रे की जो स्ट्रगल है उसको कम करने के लिए या उससे को रोकने के लिए ये स्पेसिफिक अडेप्टेशन है कि इससे ये होगा कि दांत अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं. अब जब दांत अंदर की तरफ कुछ हद तक मुड़ेंगे तो डेफिनेटली प्रे जो है वो एसोफेगस की तरफ जाएगा. अगर बाहर की तरफ भी बेंड होना शुरू हो जाए तो फिर प्रे इनकी ग्रिप से छूट जाएगा. और इनके जो टीथ हैं वो च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर होल्डिंग प्रे. दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू.